Well, now I believe this is the time that you can do a full-fledged question on this non-profit organization. And remember, what is in fact the full-fledged question on this non-profit organization? That is to prepare income and expenditure account and the balance sheet of a non-profit organization. Well, as we have already discussed few modules earlier, that in this non-profit organization, as we talk about the business entities, we will see the three level of the sizes of the non-profit organizations as well. A small non-profit organization, simply they would be preparing receipt and payment account. A medium size of non-profit organization, they will be keeping some accounting records, and based on those accounting records, the accountants would be conveniently converting from single entry into double entry and then preparing a regular income and expenditure account and the balance sheet. And then obviously the large sophisticated non-profit organization would be having their own accounting system in which they would be preparing their financial statements based on the double entry accounting system. Wahan pe all together you will see a proper bookkeeping would be there, even non-profit organization maybe. So by the way, here in this module and few modules more over it, we will see a question on a medium sized non-profit organization in which we will be preparing, or in a way we will be converting from single entry into double entry. Okay, and then we will be preparing income and expenditure account and a balance sheet. So this very question is based on that. So have a look on this question. Here we see that we have to prepare income and expenditure account and a balance sheet or a statement of financial position, obviously, of a sample health club. Okay, from the information provided for the year ending on 31st March X2, and the information with us is that on 1st of April X1 the club assets and liabilities were furniture and equipment 48,000, restaurant stock 2,600, stock of prizes 800, and 5,200 was owing for restaurant supplies. Okay, then comes the closing date on 31st March X2. Restaurant stock 3,000, stock of prizes 500, club owed 5,600 for restaurant supplies. So here we see on opening date as well as on closing date there are few assets and liabilities with us. उस एंटिटी के रेफरेंस में, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए we have few stocks and few payables, creditors, जो रेस्टोरेंट सप्लाईज के लिए अभी तक हमने ओ कर रहा हुआ है, जो पे नहीं किया, that is our creditors. Okay, सब्सक्रिप्शन फी वॉज फाउंड अनपेड 1,000. अब ये सब्सक्रिप्शन इनकम के रेफरेंस में बात आ गई कि क्लोजिंग ड्यू 1,000 है. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 700 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. अब ये प्रीवियस ईयर से मुतल्लक हमें अभी रिसीव हुआ, इसका मतलब ओपनिंग ड्यू था. एंड 400 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर. ये क्लोजिंग डेट के लिए हमें उसने एडवांस की अमाउंट बता दी. एंड फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू 10% डेप्रीसिएशन. Okay, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यहां पर ये बात जहन में रख लीजिएगा कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक कमर्शियल एक्टिविटी सपोर्ट कर रही है. ठीक है, वो जो कमर्शियल एक्टिविटी सपोर्ट कर रही है, वो क्यों सपोर्ट कर रही है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ताकि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटीज और डोनेशंस की तरफ ना देखना पड़े, बल्कि सेल्फ सस्टेन ये अपने आप को कर ले और खुद से अपने खर्चे उठाए. इसलिए वो क्या कर रही है? उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ, हेल्थ क्लब है ना, ये हेल्थ क्लब है ना, उसने लोग आते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम वगैरह करते हैं,
और उसके बाद एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हेल्दी फूड अवेलेबल है, जूसेस अवेलेबल है, इसलिए उस हेल्दी फूड या जूसेस के लिए उसने जो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, उस रेस्टोरेंट की ऑब्वियसली कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, और उसी रेस्टोरेंट के लिए कुछ पेएबल्स भी हैं, जो सप्लाईज उसके आती हैं, उसकी अमाउंट नहीं पे की होगी। तो यहाँ पर वी विल सी टू अकाउंटिंग्स इन वन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग तो हम कर ही रहे हैं, और उसके साथ उसकी कमर्शियल एक्टिविटी की भी हम एक अकाउंटिंग देखेंगे। We'll see how to work it out. Anyways, the next part of the same question is a receipt and payment account. In a way, we can call it as a cash book summary. Okay, so this is a cash book summary in which we see lots of receipts here. We have received subscription, we have received entrance fee, we have received restaurant sales. तो रेस्टोरेंट सेल्स भी उसी कैश बुक में नजर आएंगी, एक ही अकाउंटेंट है, उसने कैश बुक बनाई हुई है। और गेम्स जो हम करवाते हैं, उसके कंपटीशंस, टूर्नामेंट्स वगैरह, उन टूर्नामेंट्स की कुछ फी हैं जो कि हमें रिसीव हुई हुई हैं, नजर आ रही हैं। देन वी मेड सम पेमेंट फॉर परचेजिंग रेस्टोरेंट सप्लाईज एंड देयर इज अ पेमेंट ऑफ 18 मंथ्स रेंट। याद रखिएगा 12 मंथ से ज़्यादा जो रेंट है वो एक्रूअल के फिल्टर में आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस के तौर पर। उसके बाद rates and taxes we paid for, then salaries and wages, lighting and cleaning, competition prizes, वो जो हमने competition करवाया था, ये जिसके लिए हमें टूर्नामेंट फी रिसीव हुई थी, कंपटीशन गेम्स कंपटीशन की, उसके लिए कुछ प्राइजेस भी तो देने हैं ना। और याद रखें कि लास्ट आपने देखा था कि उन प्राइजेस का स्टॉक भी हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ओके, तो वो प्राइजेस की कंजम्पशन भी हम निकालेंगे। अपनी अकाउंटिंग की हिस्स को नहीं ख़त्म होने देना आपने। आपकी अकाउंटिंग सेंस वही है जो आपने शुरू में बना ली कि जो कंज्यूम होता है वो एक्सपेंस है। तो आपने कंपटीशन प्राइजेस के लिए जो 4000 पे किया वो सारा का सारा एक्सपेंस नहीं होगा, इसमें से जो कंज्यूम होगा वो एक्सपेंस में जाएगा, और कंजम्पशन के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है। ऑलराइट, गुड शो। नेक्स्ट कम्स प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, दिस इज आवर एक्सपेंस। फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिए, जना फालतू पैसे पड़े हुए थे 8000, हमने क्या किया, बैंक में हमने फिक्स्ड करवा दिया कि जी बचत है, साइड पर पड़ी रहेगी, कभी काम आएगी। एंड कैश बैलेंस ऑन 31 मार्च हमारे पास जो क्लोजिंग पड़ा हुआ है, दिस इज आवर एसेट विद अस। ओके, नाउ अ बिग क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो देखिए, हमें जब भी कन्वर्ट करना है फ्रॉम सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये आपने पीछे जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर पढ़ा है, सिंगल एंट्री का चैप्टर, उसमें भी पढ़ा था कि व्हेन वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन द ओपनिंग डेट। वेल, वहां पर तो हम ओपनिंग डेट पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए या ओपनिंग ओनर्स इक्विटी मालूम करने के लिए। बट हियर वी सी दैट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी डू नॉट हैव ओनर्स इक्विटी, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर ही कोई नहीं होता। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया जा रहा है? बिग क्वेश्चन राइजेस ओवर हियर। तो बात यूं है कि हमने चूंकि अब इसकी ईयर एंड पे बैलेंस शीट भी बनाना है, तो उस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड की अमाउंट शो करेंगे। Whatever the savings of this non-profit organizations were, this entity was having, वो उसमें accumulate होती चली जा रही। और कुछ अगर किसी बड़े मकसद के लिए फंड मिला हुआ है, बिल्डिंग बनानी है या इस तरह के कोई इक्विपमेंट्स लेने, तो उसके फंड्स भी इस कैपिटल फंड में ऐड हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट फिर एसेट्स खरीदे जाते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट में हमें बहरहाल कैपिटल फंड यहाँ पे नजर आता है, उसको ऑनर्स इक्विटी नहीं कहेंगे। अब बनाने का तरीका इज द सेम, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, यू विल गेट कैपिटल फंड। ओके, द सेम एज वी लर्नड इन द incomplete records. Okay, well, the next step is to prepare trading account of a supporting activity, जो कि आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है। तो वो कमर्शियल एक्टिविटी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मतलब ये कि जो उस, जैसे इसमें इस केस में आपने देखा रेस्टोरेंट एक आपकी कमर्शियल एक्टिविटी, आप उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं,
और उन प्रॉफिट्स को कमाकर आप ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर सके। अब वो जो प्रॉफिट आपने कमाए उसकी वर्किंग इज बेस्ड ऑन अ ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप रेस्टोरेंट की सेल्स लेंगे, रेस्टोरेंट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्कआउट करेंगे, एंड व्हेन आई से रेस्टोरेंट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फौरन आपके ज़हन में क्लिक करना चाहिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री होगी रेस्टोरेंट की, एज वी सी कि है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होगी, यस हमने देखा कि है, और कुछ परचेजेस ऑफ रेस्टोरेंट होंगी। अब ज़रा याद कीजिए कि कैश बुक में पेमेंट थी ना सप्लाईज के लिए, रेस्टोरेंट सप्लाईज के लिए, और फिर हमारे पास सप्लायर्स का ओपनिंग ओइंग और क्लोजिंग ओइंग भी था। दैट वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब आपको याद आ गया क्रेडिटर्स का कंट्रोल अकाउंट भी, तो हमें वहां से परचेजेस मिल जाएंगी ऑफ रेस्टोरेंट सप्लाईज। रेस्टोरेंट सप्लाईज क्या है? वो जो गोश्त, सब्जी और फल और इस तरह की चीजें जो आती हैं वो रेस्टोरेंट सप्लाईज हैं। उनको खरीदने के लिए आपने सप्लायर्स डिफरेंट रखे हुए हैं, उनके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस आप जब क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में डालेंगे और कैश पेमेंट टू दो सप्लायर्स डालेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द अमाउंट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। नेक्स्ट स्टेप, एक्रूअल्स का फिल्टर। तो whatever you have paid during the year for revenue expenditure and whatever you have received during the year for revenue incomes, वो आपकी जो होंगी एक्रूअल के फिल्टर से गुजरेंगे। ओपनिंग ड्यू, क्लोजिंग ड्यू, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, प्लस माइनस हमने सीखा हुआ इसका, एंड यू विल एंड अप ऑन द एक्रूअल बेस्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो कि आप पुट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड अल्टीमेटली आपको एक सरप्लस मिलेगा। यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं कह सकते उसको, एक सरप्लस मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई डेप्रीसिएशन है तो ऑब्वियसली वी हैव टू वर्क आउट दैट डेप्रीसिएशन एज वेल। तो ये हैं जी इसके कुछ स्टेप्स, जिन स्टेप्स को हम जब वर्कआउट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वो कन्वर्जन नजर आएगी फ्रॉम सिंगल एंट्री इनटू डबल। ओके, सो नेक्स्ट मॉड्यूल में इसका हम सॉल्यूशन देंगे।